اساتذہ کی جو جدوجہد ہے، اس کی جو محنت ہے، اس کے جو نتائج سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ مارکس کارڈ کی شکل میں ہو یا پھر جو ہے اسی طرح اس میں کچھ طلبہ جو خطابت و نعت میں کی پرفارمنس کرتے ہیں، جو سالانہ پروگرام میں ہوتا ہے اور اپنی ہنر اپنی مہارت دکھاتے ہیں، تو یہ پروگرام جو ہے ہمارے بچوں کا سالانہ انعامی پروگرام ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کا شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں، اور خصوصاً جو ذمہ داران حضرات ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پہلے ہمارے اس مسجد کے پہلے جو صدر تھے جناب شوکت علی صاحب، اور اسی طرح جو سیکریٹری تھے ایس ٹی سید صاحب، اور اس طرح جو کیشیئر جو ہے سید عارف صاحب اور رفیق صاحب، اور اسی طرح امام صاحب، جو ذمہ داران ہمارے یہاں پر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کا جو ہے پرزور استقبال کرتے ہیں، ہم پرزور اس کا استقبال کرتے ہیں، اور تہہ دل سے ہم ان کا بھی اور تمام جو حضرات یہاں پر جو بچے اور جو حاضرین مجلس بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام کا استقبال کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ تشریف لا کر یہ محفل آپ نے سجائی ہے، تشریف لا کر یہ محفل آپ نے سجائی ہے، مہمان بن کر آئے یہ خوش نصیبی ہماری ہے۔ بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا، کیونکہ آپ کے بغیر، آپ ذمہ داران کے حضرات کے بغیر اور والدین حضرات کے بغیر یہ محفل، چاہے وہ دینی محفل ہو، چاہے وہ کسی طرح کا بھی محفل ہو، وہ پیرنٹس کے بغیر، والدین کے بغیر، صدر اور ذمہ داران کے بغیر وہ پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے والدین اور ذمہ داران کا بھی ہونا ضروری ہے۔ میں سبھی کا تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ذمہ داران کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے، جزاک اللہ خیر۔ تو چلیے اب ہم اپنے تو اس طرح سے جو ہے جو ذمہ داران حضرات آئے ہیں ان کے لیے جو ہے کچھ انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے اپنی محبت اور شفقت کے ساتھ یہاں بچوں کے پروگرام سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اس کا شکر گزاری جو ہے اس انداز میں جو ذمہ داران حضرات ہیں وہ جو پہنانے والے ہیں آ کے پہنا دیں۔ سید صدر جناب صدر شوکت صاحب، دعا دیں گے صدر صاحب کو ہمارے۔ اسی طرح ہمارے جناب ایس ٹی سید صاحب جو صدر سیکریٹری تھے پہلے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے آپ سب یہاں پر تشریف لائے۔ ماشاءاللہ، اور اسی طرح جو ہے کیشیئر جو پہلے تھے سید عارف صاحب، ماشاءاللہ وہ بھی بڑی محبت کے ساتھ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے آپ تمام ذمہ داران حضرات کو۔ آپ بچوں کے پروگرام میں بار بار آئے، اس سے بچوں کی ہمت اور اس کا جو حوصلہ ہے وہ افزائی ہوتا ہے۔ اسی طرح سید رفیع صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ بچوں کے پروگرام میں شامل ہوئے، اس محبت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جو ہمارے امام صاحب ہیں جو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت دنوں سے یہاں امامت خیر انجام دے رہے ہیں، وہ بھی بچوں کے پروگرام میں شریک ہوئے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही खूबसूरत जो मंजर यहाँ दिखने को मिल रहा है। अल्लाह ऐसा और जो ऐसी सदाएं और ऐसी बहार हमेशा हमारे इस मस्जिद में, इस मदरसे में बनाए रखे इंशाअल्लाह। जो है जो खुसूसन मैं उन जिम्मेदार हजरात का भी जो है शुक्रगुजार हूँ और ममनून हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम के जो शाना बसोना जो है उन्होंने जो है इस मोहब्बत और शफकत के साथ, जद्दोजहद के साथ जो है इन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश की है। चाहे वो सदर साहब हो, चाहे ट्रस्टी साहब हो, चाहे वो मदरसे के जिम्मेदारान हज़रात हो, उन तमाम ताकाबीर है हम तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। तो लीजिए, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, वक्त बहुत कम है और अब हम अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए अपने मंजिल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे सल्फ सालिहीन का, औलियाए किराम का दस्तूर रहा है कि जब भी किसी महफिल का, जब भी किसी दीनी इजलास का आगाज होता है तो सबसे पहले उसमें जो है उस अज़ीमुश्शान अल्लाह ताला की उस अज़ीमुश्शान किताब की तिलावत की जाती है। उसके बारे में कहा जाता है ला रैब फी, इसके बारे में कहा जाता है हुदल लिल मुत्तकीन। वो कुरान जब पहाड़ पर नाजिल किया गया तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया। उस कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के ऊपर दिया है और इसलिए सबसे पहला हक अगर बनता है प्रोग्राम में तो वो कुरान करीम का है। तो लीजिए, हम जो है इस हमारे मदरसे के जो है एक मासूम सी बच्ची है, मैं उसको तिलावत कलामुल्लाह के लिए जो है मदहू करना चाहूंगा इस शेर के साथ। कुरान की तिलावत से आगाज हो इस महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो इस महफिल का, जिस नूर से चमकता है रास्ता हिदायत का। तस्मिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ाता लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे इस मदरसे की एक मासूम सी बच्ची जो है, जो उन्होंने सीखा है अपने अंदाज में तिलावत कलामुल्लाह से हम सबको सरफराज फरमा रहे थे। और तिलावत कलामुल्लाह जब जहाँ पढ़ी जाती है वहाँ पर रहमत और बरकतें होती है। अल्लाह इस बच्चे को ज़ियादा अता फरमाए, मज़ीद मेहनत करने को तौफीक अता फरमाए। तो अब मैं जो है बिला ताखिर अपने वक्त को ज़ाय करते हुए कि जो है हमेशा हमारे उलमा और सल्फ़ सालिहीन का दस्तूर रहा है, कुरान करीम के बाद जो कोई अगर तारीफ अल्लाह और कुरान करीम के बाद जो कोई तारीफ के अगर लायक है तो वह हमारे ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा की जो है तारीफ में हम गुनगुनाने के लिए तस्मिया समीर और ज़बी को मैं मदरू करना चाहूँगा इस शेर के साथ। इश्क मुस्तफ़ा जिसके सीने में हो, इश्क मुस्तफ़ा जिसके सीने में हो, वो जहां भी रहे दिल उसका मदीने में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। किसने लाकर गला में
ماشاءاللہ ہمارے اس مدرسے کے جو معصوم بچے سمیر اور زبی جو ہے ابھی جو نعت نبی گنگنا رہے تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم مدینے کی گلیوں میں سیر کر رہے ہیں. وہاں کے پورے منظر ہمارے سامنے میں تھا جب یہ نعت پڑھ رہے تھے. اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت کے حقدار کوئی ہے تو وہ ہمارے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو لیجیے اب ہم وقت کو ضائع کیے بغیر اب ہم جو ہے اپنے اسپیچ کے لیے، تقریر کے لیے، جو ہمارے ایک مدرسے کے بچے نے تقریر جو ہے انہوں نے یاد کیا ہے اردو میں اور ساتھ میں ہی انہوں نے انگلش میں بھی یاد کیا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ سماعت فرمائیں. حمید آئے وہ اسٹیج پر اور وہ اسپیچ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اسلام کے بارے میں، نماز کے بارے میں کچھ الفاظ کہہ رہا ہوں. نماز اسلام کا دوسرا ستون ہے. نماز اسلام کا دوسرا ستون ہے اور نماز اسلام کی پہچان ہے، کیونکہ ہمارے اللہ قرآن کریم میں قرآن میں فرمایا ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے مفتاح الجنت الصلاۃ، یعنی نماز جنت کی کنجی ہے. اسی لیے ہر مسلمان کو نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے. اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت سزادار اور عمل ہوگا. اسی لیے ہر مسلمان کو نماز وقت پر پڑھنی چاہیے. ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے. Now I am going to speak this speech in English. Namaz is the second pillar of Islam, and namaz is compulsory for every Muslim because Allah has said in the Quran, namaz is compulsory for everyone. Similarly, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, "Miftahul Jannati Salat," means namaz is the key to achieve Jannat. If we leave the namaz, it is very punishable for us. So everyone must pray the namaz on time to time. The difference between us and kafir is namaz. Inshallah, from today we will pray the namaz on time to time. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے اس مدرسے کے بچے نے جو ہے حمید نے اسپیچ یاد کیا اور بہت کم وقت میں جو ہے ہماری یہ بات بتانا میں بھول گیا تھا، ہمارے بچوں نے بہت ہی کم وقتوں میں جو ہے پروگرام کی تیاریاں کی ہیں. میں اس کی ہمت کو سلام کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں کہ مزید جو ہے انشاءاللہ بچہ آگے چل کے جو ہے انشاءاللہ ایک بڑے اسٹیج میں جو ہے یہ اسپیچ کرے گا. اللہ اس سے خیر عطا فرمائے. تو لیجیے میں اب اپنے وقت کو ضائع کے بغیر اب میں تیسرے مرحلے پہ جاتے ہیں. جو علیزہ ہے ہمارے اس مدرسے کی بچی، انہوں نے کچھ دعائیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گی. علیزہ دعا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوم کلمہ شہادت اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. کھانے کی دعا. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کرنے کی دعا. بسم اللہ اولہ آخرہ. کھانے کی بات کی دعا. الحمدللہ اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. سونے کی دعا. اللہم بسمک اموت واحیا. سو کر اٹھنے کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بیت الخلا جانے کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلا سے آنے کی دعا. الحمدللہ الذی اذہب عنی الأذى وعافانی. حدیث نمبر 1 الدین یسر الدین آسان. حدیث نمبر 2 مفتاح الجنت السلام. نماز جنت کی چابی. حدیث نمبر 3 من وشا فلیس بنا. جو دھوکا دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. حدیث نمبر 4 السلام قبل کلام. بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 5 علیکم بالصدق. ہمیشہ سچ بات کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ہمارے اس معصوم سی بچی نے بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ جو ہے اسٹیج پہ آئی. یہ بہت بڑی بات ہے. بڑے بڑے لوگوں کا بھی جو ہے اسٹیج میں آ کر جو ہے پاؤں ہلنے لگتے ہیں, لیکن اس بچے نے اپنی ہمت اور بہادری کے ساتھ جو ہے اسٹیج میں جو ہے جو بھی اپنے انداز میں انہوں نے کوشش کی ہے, اللہ اس کی کوشش کو کامیاب عطا فرمائے. اب جو ہے تیسرے مرحلے پہ جاتے ہیں. اس کے لیے جو ہے اب ہم نعت پڑھنے کے لیے جو ہے فلیشا اور ام رومان کو میں مدعو کرنا چاہوں گا کہ وہ لب آتی جو ہے ہمیں سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت. جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. زندگی ہو میری پروار کی صورت یا رب. علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. ہو میرا کام مجبور کی حمایت کرنا. درد مندوں سے ظریفوں سے محبت کرنا. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. نیک جو رہا اس راہ پہ چلانا مجھ کو. لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ابھی ہماری دو بچی جو ہے مدرسے کی بڑے اچھے انداز میں لب آتی گنگنا رہی تھی. اور لب آتی جو علامہ اقبال کا بہت ہی مشہور اور فیمس نعت ہے, اور یہ بہت سارے اسکول میں ایسا ترانہ جو ہے پڑھایا جاتا ہے. بہت اچھی دعا ہے. بچوں نے جو ہے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پڑھا ہے. اللہ اس کو خیر عطا فرمائے, مزید محنت کرنے کو توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد جو ہے میں عثمان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ دعا سنائیں جو انہوں نے یاد کیا ہے. عثمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अव्वल कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दुआम कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सूरम कलिमे तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। खाने की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह भोजन पर पढ़ने की दुआ बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। खाने की बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हय्याना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया। सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हय्याना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। बैतुल खुला जाने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। बैतुल खुला से आने की दुआ बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफानी। हदीस नंबर 1 अदीनुन रसूलुन अदीन आसान है। हदीस नंबर 2 मिफ्ताहुल जन्नतिल सला नमाज जन्नत की चाबी है। हदीस नंबर 3 मन गश्शा फलैश मिन्ना जो धोखा दे वो हम मुसलमानों से नहीं है। हदीस नंबर 4 अस्सलामु क़ब्लल कलाम बात करने से पहले सलाम पढ़ो। हदीस नंबर 4 अलैकुम बिस्सिन हमेशा सच बात कहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह हमारे इस बच्चे ने बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने जो है दुआ सुनाया है। और मैं बच्चों से भी कहूँगा कि जो दुआ आपने याद की है वो घरों में जो है इसकी आदत बनाएं। जो है आपको इसका सवाब भी मिलेगा और इसका फ़ायदा भी होगा। दूसरी बात ये कि अब उसकी बात जो है मैं इस्लामी सवाल जवाब के लिए कुछ बच्चों ने हमारे इस्लामी सवाल जवाब तैयार किए हैं और ये बहुत ही अहम चीज़ है। इससे आपको ही फ़ायदा हो जाता है और बच्चों के जहन में भी बहुत सारी इस्लामी मालूमात आ जाती है। तो मैं हमीद और अरबाज को मैं इस्लामी सवाल जवाब के लिए स्टेज पे मदऊ करना चाहूँगा। हमीद और अरबाज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे खालिक का नाम क्या है? हमारे खालिक का नाम अल्लाह है। इस्लाम के कितने सुतून हैं? इस्लाम के 5 सुतून हैं। हमारे आखिरी नबी कौन है? हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान मजीद के सबसे पहली सूरा कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे पहला सूरा अल फातिहा है। दिन में कितने नमाज फर्ज है? दिन में 5 नमाज फर्ज है। सबसे पहले नबी का नाम क्या है? सबसे पहले नबी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम क्या है? इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। मुसलमानों का किबला किस शहर में है? मुसलमानों का किबला मक्का शहर में है। कुरान मस्जिद में टोटल कितने पारे हैं? कुरान मजीद में टोटल 30 पारे हैं। अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया घर कौन सा है? अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया घर पहला खाना काबा है। फर्ज रोजे किस महीने में रखे जाते हैं? फर्ज रोजे रमजान के महीने में रखे जाते हैं। वज़ू के कितने फराइज हैं? वज़ू के 5 फराइज है। अज़ा देने वाले को क्या कहते हैं? अज़ा देने वाले को मौज़ून कहते हैं। इस्लाम के पहली खलीफा कौन है? इस्लाम की पहली खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जन्नत की कुंजी क्या है? जन्नत की कुंजी नमाज है। अल्लाह के कितने नाम मशहूर हैं? अल्लाह के 99 नाम मशहूर है। सोने पर ज़कात का क्या हिसाब है? सोने पर ज़कात का 2.5% हिसाब है। कुरान किस फरिश्ते के जरिए नाजिल हुए? कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम के नज़रिए से नाजिल हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अबू बकर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम बीबी आमीना है।
खबर में कितने सवाल पूछे जाते हैं? खबर में 3 सवाल पूछे जाते हैं, मा दीनुका, मा रब्बुका, मा रसूलुका। वो कौन से नबी हैं बगैर बाप के पैदा हुए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाह का मतलब अल्लाह के नाम से शुरू। सबसे आखिरी आसमानी किताब कौन सी है? सबसे आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद है। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने जो है बहुत कम वक्त में बच्चों ने तैयारी की है। अल्लाह इसकी हिम्मत को मैं इसकी हिम्मत को सलाम करता हूँ। अल्लाह मज़ीद इन बच्चों के अंदर हिम्मत और बहादुरी दे और आइंदा प्रोग्राम में मज़ीद ये अपनी पुख्तगी के साथ जो है स्टेज पे आए और अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। अब इसके बाद जो है मैं एक हम्द जो है गुनगुनाने के लिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ में तो हम्द हो गई, लेकिन एक ज़ात बारी ताला जो पूरी कायनात का बादशाह है, ज़र्रे ज़र्रे का मालिक है और इसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते, और इस जो नबियों का भी मालिक है, उस मालिक की तारीफ में, उसकी हम्द में जो है मैं तस्मिया और ज़ैना को मैं इस शेर के साथ दावत देना चाहूँगा कि लफ्ज़ों में क्या कहूँ उसकी तारीफ, लफ्ज़ों में क्या कहूँ उसकी तारीफ। जो न मांगो तो भी नवाज देता है और जो मांगो तो बेहिसाब देता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु वो जो बिलाले हबशी है सरवर्दी का प्यारा है। वो जो बिलाले हबशी है सरवर्दी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है सरवर्दी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर सीने पर रखा पत्थर, लब पर फिर भी जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी। मेरे आने से पहले क्या छुपके छुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलामे पाके खुदा, दिलिए उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह बड़े ही अच्छे अंदाज में दोनों बच्ची जो है अल्लाह ताला की तारीफ में, उसकी हम्द में जो है अल्लाह की तारीफ बयान फरमा रही थी। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी अता फरमाए। अब यहाँ जो हमारे बच्चों का जो है, जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था उन तमाम बच्चों का प्रोग्राम हो चुका है। मैं जो हूँ इसकी जो है कुछ ओपिनियन
اور اس کے کچھ اظہار تعریف میں اپنے ذمہ داران حضرات سے جو ہے 2-4 الفاظ میں وہ جو ہمارے بچوں کی تعریف میں یا جو ہم نے کس طرح سے پروگرام کیا 1-2 الفاظ اگر کہنے سے ہماری ہمت اور بچوں کی ہمت افزائی ہو جاتی ہے. میں صدر صاحب سے اور جو ہے جناب سید عارف صاحب سے بھی کہوں گا 1-2 الفاظ بولے ہمارے بچوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بچے ذرا ارجنٹ نہیں کرنا, دھیرے دھیرے پڑھنا, ان میں سے ڈر چھوڑ کر جو مائک کے سامنے کھڑنے کے ٹائم پر دل تھام کر آرام سے پڑھنا چاہیے. اس میں کوئی ارجنٹ نہیں ہے, آرام سے. کیونکہ تم نا دل میں تھوڑا ڈر لگتا ہے, اس لیے کیا کرتے ہیں اس مائک کے پاس میں فاسٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے تھوڑی الفاظ کم ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہ دوبارہ اور ایک بار پروگرام کر کے جب پڑھنے کے ٹائم پر بچے آسان سے آرام سے پڑھنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے. سمجھ میں آیا؟ اگلے بار پروگرام میں جو بچے جو پڑھتے ہیں جب آرام سے پڑھتے, ارجنٹ نہیں ہے, کوئی ارجنٹ سے کہیں جانا نہیں ہے. بچوں کی بہت اچھی سے اچھی تعلیم چلی ہے, ان کی تو ہمیں بہت تعریف کرتی ہے. ماشاء میں سید عارف صاحب سے بھی جو ہے 1-2 الفاظ سننا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے بچوں کے جو ہے بارے میں کچھ ان کی ہمت افزائی کے لیے ان کی جو ہے ان کی محنت اور ان کی جو ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے دلوں میں لگتے ہیں اور پیرنٹس کے دلوں میں لگتے ہیں, وہ آگے چل کے ان بچوں کی ہمت اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے. سب بچے اچھا پڑھے اور عربی پڑھنا ایک ہی یہ نہیں تو سمجھ کو پڑھنا, اور عربی کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی علم بہت ضروری ہے. دین اور دنیا دو بھی ضروری ہے. عربی سمجھ کو بھی پڑھو, اس کے معنی پڑھو, سمجھو کیا دین کیا بولتا ہے, بیسک سے پڑھتے جو. اچھا انشاءاللہ بہت اچھا پرفارمنس ہے. اب جو ہے ہمارے جو ہمارے بچوں نے جو امتحان دیا ہے, جو ایگزام دیا ہے, اور یہ ہمارے بچوں کا جو ہے یہ آخری سالانہ پروگرام ہے, اور اس کے بعد جو ہے مدرسے کی چھٹی ہو جائے گی کیونکہ رمضان بہت قریب ہے اور یہ شعبان کا آخری مہینہ بھی چل رہا ہے. لہٰذا جو جن بچوں نے جو ہے یہاں پر امتحان میں اچھے مارکس لائے یا جنہوں نے کم محنت کی ہے تو وہ انشاءاللہ آئندہ بھی محنت کریں گے, کوشش کریں گے. تو جن بچوں نے بھی ایگزام دیا ہے ان کا مارکس کارڈ بنا ہوا ہے, وہ ہمارے ذمہ دارانہ حضرات کے ہاتھ سے لیں اور انشاءاللہ وہ اللہ برکت عطا فرمائے. جو کون دینے والے ہیں سامنے ہوگا نا. شیخ سلیمان. ادھر پلٹو, ہاں ایسا. حسین کا حسین آ جاؤ. حسین کا شیخ عبدل. شیخ ابو عبدل حق. شیخ عبدل.
सीधा नहीं आ मोहम्मद मोमिन फलिशा है फलिशा अदनान भी आ जाओ अदनान माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह हमारे बच्चों को ज़िंदा रखे। अब जरा हमारे सेक्रेटरी हमारे जो केशियर है हमारे सैयद आलिम साहब के हाथ से जरा हमारे बच्चों को दे दिया जाए तो जरा ये इससे हिम्मत हौसला अफजाई होता है। आयरा आमिना मोहम्मद कहाँ है चलिए आमिना मोहम्मद बेटा आमिना मोहम्मद सैयद जबीउल्लाह चलिए लो सैयद जबीउल्लाह जबीउल्लाह सैयद जबीउल्लाह जबीउल्लाह कहाँ है मोहम्मद जुबैर कहाँ है मोहम्मद जुबैर क्लैप्स करो अलीजा अलीजा आ जाओ अलीजा अरबाज अल्लाह ने जरा खैर फरमाए अब मैं जो है कुछ जो मार्क्स कार्ड है सैयद साहब के हाथ से भी देना चाहूँगा ताकि बच्चों के अंदर जो है एक शौक पैदा उम्मे रहमान आ जाए स्टेज पे उम्मे रहमान जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह ऐसा इस्माइल मौला मौला इसके बच्चों को पहले मौला मौला इबाद इदरीस इबाद मौला इबाद को भेज दो इबाद आगे बेटा अच्छा बेटा सैयद उस्मान मेडल डाले सबको क्लैप्स करना पूरा इनायतुल्लाह आमिना मोहम्मद फैसल मोहम्मद फैसल जल्दी आना इमाम साहब थोड़ा आ जाए आप अपने बिहार से जो है बच्चों को दें माहौल बनता है इंशाअल्लाह ऐसे ही माहौल है शेख अबू बकर कुरैशी तशरीफ माशाअल्लाह इस बच्चे ने
डिसिप्लिन में अच्छा मार्क्स लाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला और बहुत ही अच्छे अंदाज से मदरसे में रहते हैं। नैना भी मोहम्मद फरहान स्टेज पर। माशाअल्लाह अरे मामू का बेटा फरीद, निगरानी मोहम्मद फरीद स्टेज पर। मामू फरीद का बेटा मामू का बेटा मोहम्मद फरीद अब्दुल हक क्लास आपसे बच्चों के अंदर मोहब्बत पैदा होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी हमारे बच्चों को मार्क्स का माना गया है। अल्लाह आप सभी को इसमें अता फरमाए। आमीन। हमारे यहाँ हाँ माशाअल्लाह जो है हमारे मदरसे माशाअल्लाह बहुत ही दिल मोहब्बत करने वाली बात है कि जो असल जो मंजिल है, जो असल बात है, जो अब हम बोलने जा रहे हैं कि हमारे मदरसे में जो 8 या 9 महीने से जो पूरे साल में जो बच्चों की पढ़ाई की है, जो बच्चों ने मेहनत किया है रोज आने में और उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, कुरान हो, हदीस हो, दुआ हो, उसमें जिन बच्चों ने अच्छा मार्क्स लाया है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा तमाम पेरेंट्स से, तमाम बच्चों से, वो बिल्कुल भी दिलशंकी न करें, बिल्कुल भी नाराज ना हो कि हमारे बच्चों को नहीं मिला या हमारे बच्चों को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी टीचर किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। ये हम प्राइज बांटने से पहले ही कह देते हैं। वो इसलिए कि आपके दिल के अंदर ये होना चाहिए, चाहे किसी के बच्चे को जो है प्राइज मिला है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम अपने बच्चों को भी मेहनत करने के लिए कहेंगे, वो हमारे बच्चों को भी प्राइज मिलेगा। तो जो है हमारे मदरसे के जो है जो 3rd प्राइज मिला है शेख अब्दुल हमीद जो है, इसको 3rd प्राइज मिला है, जिन्होंने जो है अरबी में, दुआ में, हदीस में जो पढ़ाया गया है उसमें मेहनत की है। अल्लाह मजीद इसे मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद इरफान साहब के हाथ से प्राइज दिया गया है। अल्लाह इरफान साहब को मेहनत अता फरमाए। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, हमारे इरफान साहब ने भी। तस्मिया माशाअल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे में अंदाज में सेकंड प्राइज मिला है। सैयद रबी साहब जो पेशे में बहुत मेहनत किया है, मदरसे के लिए और मस्जिद के लिए सेक्रेटरी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अलग से बहुत अच्छे अंदाज में हमारे बच्चों ने मेहनत की है और हमारे जिम्मेदार हजरात ने भी बहुत मेहनत की है। जो हमारे मदरसे के जिम्मेदार आसिफ साहब है, इशारत है, माशाअल्लाह जो हमारे मदरसे के जो सदर साहब है और जिन्होंने बच्चों के पीछे बहुत मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया है। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल अता फरमाए, अल्लाह इनकी मेहनत को मजीद तरक्की अता फरमाए और आइंदा जो हम बच्चों को भी कबूल अता फरमाए। इनके हाथ से जो 1st प्राइज है मोहम्मद समीर
मैंने पहले भी कहा है कि अल्लाह ने जिसके नसीब में लिखा है वही है, और दूसरी बात जिन बच्चों ने मेहनत की है वो प्राइज उनका हक था, वो उनका हिस्सा था, उसे मिल गया है। इंशाल्लाह आइंदा आप बच्चे ही मेहनत करें, आप कोशिश करें फर्स्ट प्राइज हमें मिले, सेकंड प्राइज बात सुने, सेकंड प्राइज हमें मिले, थर्ड प्राइज हमें मिले, आप भी कोशिश करें। मैंने पहले भी कहा था किसी को भी जो है मार्क्स किसी के चेहरा देखकर, किसी के पेरेंट्स को नहीं दिया जाता है, बल्कि बच्चों की मेहनत को देख के दिया गया है और सबके सामने दिया गया है। अल्लाह जल्ल खैर फरमाए। अब कुछ अल्फाज हैं जो हम कहकर जो है जो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को जो है इंशाल्लाह खत्म करेंगे 10-15 मिनट। मेरे जो गला ऑलरेडी खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी बच्चों की हिम्मत और उसकी हौसला और ये प्रोग्राम देखकर मेरे अंदर भी वो जोश और वो हौसला पैदा हो गया है। इंशाल्लाह जो है हमसे जरा मैं जो हमारे ज़िम्मेदार हज़रात ने किए हैं, अल्लाह जरा खैर फरमाए। और कुछ तनकीदी बात है जो बताना ज़रूरी है, इंशाल्लाह वो हम बता रहे हैं, और वो बहुत ही ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं वो तवज्जो दें हमारे चंद बातों पर, ताकि ये आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए चंद बातें हैं जो है सुनना जरूरी है। सबसे पहली बात तो वही जो हमने पहले कहा कि जो भी जिन बच्चों को नंबरात दिए गए हैं वो जो है उन बच्चों की मेहनत के हिसाब से दिया गया है, और इस तरह से जो है डिसिप्लिन के जो मार्क्स दिए गए हैं, जो पेरेंट्स हजरात हैं अल्लाह के वास्ते वो जरा ध्यान दें कि डिसिप्लिन में जिन बच्चों का मार्क्स कम आया है वो अपने बच्चों से पूछे कि आपके डिसिप्लिन में मार्क्स कम क्यों आया है। कारण है क्योंकि मैंने इससे जो है पहले ही कहा था कि बच्चों के अंदर हम जितनी भी उसकी तरबियत करेंगे वो उस तरह से निखर कर हमारे सामने आएगा। तो जिन बच्चों को डिसिप्लिन में ज़्यादा मार्क्स आया है, इसका मतलब है कि वो बच्चे अच्छे अंदाज से मदरसे में बैठते हैं, अदब से रहते हैं, और जो बाअदब होता है दुनिया उसकी नाम करती है। बच्चों के अंदर हम अभी से अदब डालेंगे तो वो आगे चल के बाअदब बनेगा, और अगर हम अभी से बच्चों के अंदर अदब नहीं डालेंगे, घर में छोटी मोटी बात पर हम टोके बच्चों को, रोके। अगर झूठ बोलता है बच्चा, इमीडिएटली उस वक्त रोक दे, बच्चा झूठ है, झूठ बोलना गलत है। ये मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ, ये मैंने आपके बच्चों को मैं टीचर हूँ लेकिन एज अ फादर भी हूँ सारे बच्चों का, क्योंकि मेरे अंदर मोहब्बत है। मुझे किसी के कंप्लेन के एज अकॉर्डिंग नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, और मुझे कोई कहने का शौक नहीं है, सिर्फ आप बच्चों की भलाई के लिए और आप पेरेंट्स की भलाई के लिए कह रहा हूँ। चंद बातें जो हमें कहना जरूरी है वो ये है कि आप अपने बच्चों की तरबियत पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे झूठ में बहुत आगे हैं, और लड़ाई में, झगड़े में, गाली गलौज में कुछ बच्चों में है। मैं सारे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों में है। तो उससे क्या होता है, माहौल खराब होता है। तो हम जितने अपने बच्चों को अच्छा घर में सिखाएंगे, इससे पहले भी कहा गया सबसे पहला मदरसा माँ बाप है, टीचर बाद में है। पहला जो मदरसा होता है वो पेरेंट्स होता है। पेरेंट्स अपने घर में बच्चों को कैसा तरबियत करेगा, बच्चा वैसा होगा। जिस तरह से पेड़ होगा वैसा फल होगा, ये हकीकत है। आप जितने अच्छे बनेंगे, आप अपने बच्चों को जिस तरह से तरबियत करेंगे, आप बच्चों को बोले झूठ बोलना गलत है, आदत उसकी बनाए, और ब्लेम लगाने, इल्जाम लगाने वाली आदत से भी दूर रखें, और इस तरह गाली बोलने की आदत से भी दूर रखें। जहाँ बोले फौरन डांट दे, उसी वक्त रोक दे, नहीं तो वो अगर हम छोड़ देते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो आदत बिगड़ जाती है। फिर जो है वो आदत, बेटा बहुत गौर से सुनो, बहुत गौर से सुनो, हमारी बहुत गौर से सुनो बेटा। हम बड़ी, गला मेरा खराब हो गया फिर भी हम बोल रहे हैं, वो आपकी मोहब्बत में बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी फ्यूचर आपके लिए अच्छा हो। मैंने पहले भी कहा घर में ही आप अपने बच्चों की तरबियत करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में मैंने खामियां देखी है, इसलिए बता रहे हैं। तीसरी बात यह है कि बच्चों को जो है रोज भी मदरसा भेजें। बच्चों में छुट्टियां बहुत ज्यादा होती हैं, और जो बच्चे छुट्टियां करते हैं वो जो है सबक में है, वो दुआएं में वो पीछे हो जाते हैं। उससे आपके बच्चों का मार्क्स कम मिलेगा, बच्चे पीछे रहेंगे, तो वो फिर आपका नुकसान है। वो
जो है आपका भी नाम खराब होगा और बच्चे का भी फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। जितनी मोहब्बत और मेहनत के साथ जो है आप स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, वही मेहनत लगन के साथ जो है आप अपने बच्चों को मदरसे में भेजें। स्कूल की मोहब्बत इतनी ज़्यादा है और मदरसे की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की पढ़ाई इतनी कम, ये ज़रा ईमान की कमज़ोरी है। ज़रा सोचने वाली बात है। अपने बच्चों को कुरान सिखाने के लिए भेज रहे हैं, दीनी तालीम देने के लिए भेज रहे हैं, कभी भेजते और कभी नहीं भेजते। ये लापरवाही मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। अपने बच्चों को रोज भेजें, बिला जरूरत छुट्टी ना करें। और तरबियत के बारे में यही कहा था कि बच्चों के अंदर इस तरह से बच्चे माँ बाप से अदब से बात, नए बच्चों को समझाते रहे तो हमेशा माँ बाप का अदब करें, रिस्पेक्ट करें, ऊंची आवाज से बात ना करें। ये मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ। आप भी कहा करें कि टीचर्स के साथ भी अदब के साथ रहा करें, क्योंकि जब और टीचर और बच्चे जब दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो एक माहौल बनेगा। तो जाहिर सी बात है, जरे कुछ ऐसा हो जाता है, छोटी मोटी बात पर जो है पेरेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, टीचर की जो हिम्मत है वो पस्त हो जाता है और वो जो है ज़हनी दबाव में आ जाता है कि हमारे बच्चों को ऐसा, हमारे बच्चों को ऐसा। थोड़ा सा भी अगर, मैं माफ कीजिए अगर किसी को तकलीफ हो रही है हमारी बात से, कि थोड़ा भी किसी बच्चों को मिस्टेक से अगर चोट अगर लग जाती है तो बहुत बड़ा इशू खड़ा कर देते हैं। ये गलत बात है। इस तरह से आप अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। और क्योंकि हमने भी बचपन में बहुत मार खाए हैं, आज हम आपके सामने जो बातें कर रहे हैं ऐसे नहीं, बल्कि हमने बहुत मारे खाई है। सोने का जो जेवर होता है तैयार ऐसे नहीं होता है, उसको मार मार कर चीज करके तब सोने का जेवर तैयार होता है, फिर उसकी कीमत होती है, फिर उसकी वैल्यू होती है। तो ये आपके बच्चे जो है ये सोना और चांदी है, इसको आप जितना संवारेंगे, जितना डांटेंगे, जितना बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ये बच्चे आप बड़े होकर उसी तरह आपको वो खूबसूरत फूल बनकर दिखाएगा। बिगाड़ना आपके हाथ में है, सुधारना आपके हाथ में है। मैंने पहले भी कहा है कि तो डिग्री, जैसे कि इंग्लिश में कहावत है, डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ द पेपर बट योर रियल एजुकेशन सीन्स इन योर बिहेवियर। मैंने पहले भी कहा है, आपका बिहेवियर वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एजुकेशन बाद में है, इंपॉर्टेंट आपका बिहेवियर है। बेटा पहले 12 बताओ, बिहेवियर अच्छा करें, अच्छे से बैठना है। मदरसे में बच्चे आते हैं अदब से बैठते नहीं है, और जब कुछ बच्चों से कहा जाता है तो कुछ बच्चे बहस करते हैं। ये गलत बात है बेटा, ये आपकी भलाई के लिए है। मदरसा आपको स्कूल में ये अदब नहीं सिखाया जाता है, आपको ये अदब मदरसे में सिखाएगा। माँ बाप का अदब करना, रहना कैसे है, चलना कैसे है, किस वक्त क्या पढ़ना है, वो मदरसे में सिखाया जाता है। इसीलिए आप मदरसे का जो है अदब करें, जहाँ बैठते हैं उसका भी अदब करें। अल्लाह आपको रज़ाए खैर अता फरमाए। तो इसके अलावा जो है जो बातें थी वो हमने कह दी है। जो है अल्लाह का रज़ाए खैर अता फरमाए। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और जो है मेरा भी गला मेरे साथ नहीं दे रहा है। अल्लाह रज़ाए खैर अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंद अल-मौत वला तुअद्दिबना बअद अल-मौत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। اللهم انصرنا وانت خير الناصرين. اللهم ارحمنا وانت خير الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين. الذي हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं। अल्लाह हम जो भी हैं हम आपके बंदे हैं, बड़े ही बंदे हैं लेकिन तेरे ही तो बंदे हैं। अल्लाह हम सबको यहाँ पर बैठना कबूल अता फरमा। अल्लाह हमारे मासूम बच्चे ने आज प्रोग्राम किया है, दीनी महफिल हुई है, जितने भी पेरेंट्स जितने भी वालिदैन यहाँ पर आए हैं अल्लाह उसका आना कबूल अता फरमा। इतने बच्चे ने अल्लाह
حصہ لیا ہے اور جنہوں نے محنت کی ہے اللہ ان سب کو قبول فرما. جن ذمہ دار حضرات نے اللہ اس میں محنت کی ہے اللہ اسے بھی قبول عطا فرما. اللہ اس کی رزق میں برکتیں عطا فرما. اللہ مزید ان ذمہ دار حضرات کو مدرسے اور بچوں کے پیچھے اس طرح سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو بڑا کریم ہے. اللہ تو کس کے ہاتھ سے دین کا کام لیتا ہے وہ تو ہی جانتا ہے. اللہ اللہ رحم کا کرم کا معاملہ عطا فرما. اللہ ہمارے اس مدرسے کے بچوں کو اللہ مزید تربیت اور دینی ماحول عطا فرما. اچھے اخلاق والا بنا, اچھے کردار والا بنا, با ادب بنا, با اخلاق بنا, ماں باپ کا فرما بردار بنا, اطاعت کرنے والا بنا. اے اللہ سب کا ادب کرنے والا بنا. اے اللہ علماء کی عزت کرنے والا بنا, اپنے اساتذہ کی عزت کرنے والا بنا. اللہ ان بچوں کی گھروں میں برکتیں عطا فرما. اللہ ان بچوں کی پڑھائی میں برکتیں عطا فرما. اللہ ان بچوں کے ذہن میں برکتیں عطا فرما. اللہ جو بچے پڑھتے ہیں اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو بڑا کریم ہے, اللہ تو بڑا رحیم ہے. اللہ اپنا رحیمانہ کریمانہ فضل عطا فرما. اللہ ہم گنہگار بندے اس لائق تو نہیں ہے کہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے, لیکن تو بڑا کریم ہے, بڑے سے بڑے گنہگاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ ہم سب گنہگاروں کو معاف عطا فرما. اللہ ہم سب بچوں کو ایمان والا بنا, سارے والدین کو ایمان والا بنا, دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ایمان آج مسلمانوں کی حالات بہت خراب ہے. کتنے ایسے ہیں جنہیں کلمہ تک نہیں آتا. اللہ اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے بچوں کو بھی اسلام سکھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. اللہ آج ہم اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں. اللہ ہم علماء اور حضرتوں سے کٹ چکے ہیں. اللہ آج ہم دنیا سے قریب ہو گئے ہیں. اللہ علم والوں سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ بچوں کو علم سکھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ حدیث سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے ماحول میں, ہمارے اس پورے ایریے میں دین کا چشمہ عطا فرما, دین کا منور عطا فرما, روشنی اور چراغ جلا دے دین کا. اللہ ہر گھر میں دین پھیلا. اللہ ہر گھر میں دین کا ماحول عطا فرما. عورتیں, بچے اور مرد سارے حضرات اللہ نمازی ہوں, اللہ متقی بنے, اللہ پرہیزگار بنے. اللہ سب کو اللہ بے نمازی سے سب کی حفاظت عطا فرما. اللہ مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما. اللہ بری موت سے ہماری حفاظت عطا فرما. اللہ بے ایمانی کی موت سے ہماری حفاظت عطا فرما. اللہ مانگنے کو بہت کچھ ہے, تیری ذات پر نرالا ہے, تیری شان بڑی نرالی ہے. اللہ ہم سب کے یہاں پر آنا قبول عطا فرما. اللہ ہمارے اس مختصر سی دعا کو اپنے حبیب تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل قبول عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.